हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। देखो, कबीर जी की एक कोट बता रखी है इधर स्टार्टिंग में। जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हस्क ब्लो अवे while retaining the grains, similarly sages let the virtues stay well discarding the vices। कितनी प्यारी कोट है। देखो, चलो अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माली एंड हिज सिस्टर वाली आर एक्साइटेड फॉर देयर समर वेकेशंस। Their parents have planned a trip to visit their relatives and friends living across India. They always stay in touch with their relatives and friends. Do you also keep in touch with your loved ones? वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप भी अपने रिलेटिव्स के टच में रहते हो। Their first halt is at their nanny's house in Haryana. It is surrounded by large fields. Mali and Wali are fascinated by the variety of grains piled up in the courtyard. Their mommy and mama, along with other community members, are busy separating small stones and husk from the grains with their hands. वो नानी के हाउस जाते हैं हरियाणा में। वहाँ पे उनके जो मामा मामी हैं वो बिज़ी होते हैं अपने स्टोन्स को, हस्क को ग्रेन में से सेपरेशन करने के लिए। Mali and Wali are curious to know why this is being done. Their Nani notices their curiosity and explains, "We are removing these stones so that the grains are fit for cooking." कि स्टोन इसलिए उसमें से सेपरेशन कर रहे हैं ताकि वो एडिबल बन जाके खाने के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ हो सके वो ग्रेन्स। They go around the house to see the fields and cattle. To keep them busy, Nani gives them a challenge of hand picking small stones from grains while keeping their eyes closed. वो इधर उधर फील्ड्स देखते हैं, कैटल को देखते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स नानी उनको हैंड पिकिंग के लिए लगा देती हैं कि स्टोन्स आपने सेपरेट करने हैं ग्रेन्स में से हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करके। अब द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर such as small stones and husk from wheat and rice is called hand picking। इसको जो मिक्सचर में से इनको सेपरेट आउट करना है, वीट और राइस में से स्टोन को सेपरेट करना है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग मेथड। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, color and shape of the particles. If the particles to be removed are present in small quantities and can easily be picked by hand. Hand picking proves to be a convenient method. Hand picking क्या प्रूव करता है? एक बहुत ही convenient method प्रूव करता है। At lunch, Mali and Wali are served steaming hot vegetable pulao. While eating the pulao, Nani observes that Mali is separating whole black papers from the pulao and is placing aside on his plate. Wali playfully teases, "Wow, this is a hand picking method, nice one." Nani tells them about the benefits of black paper and encourages Malis to eat it. जब वो राइस खा रहे होते हैं तो माली क्या कर देती है, उसमें से ब्लैक पेपर सेपरेट कर देती है और जो वाली है उसको चिढ़ाता है और उसको बताता है कि बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर क्या क्या, उसको इनकरेज करता है कि हमें ब्लैक पेपर खाने चाहिए और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेटर इन द डे देयर मामा टेक्स दैम टू द फील्ड्स where they observe bundles of harvested wheat stalks lying in the fields. Some stalks are spread in the sun for drying. कुछ stalks ऐसे होते हैं जो ड्राइंग के लिए उन्होंने ड्राई करने के लिए सन में रखे होते हैं। Both of them pick up a stalk each and notice numerous grains attached to it. और उसमें इतने मल्टीपल ऑफ ग्रेन्स लगे होते हैं। A group of farmers are beating the stalks on a large wooden log. मतलब जो फार्मर होते हैं उसको एक वुडन लॉग से उसको बीट कर रहे होते हैं। Curiously, Wali asks Mama, "Why are they doing this?" Mama explains they are beating the stalks to separate the grains. This process of separating grains from the stalks is known as threshing. अब grains को stalk में से अलग करने को process को बोलते हैं threshing. Farmers work hard yet they enjoy their work. वर्क हार्ड तो करते हैं लेकिन वो इंजॉय करते हैं अपने वर्क जो भी है।
From time to time, they sing folk songs while working. The separated grains get mixed with piles of husk. Wali whispers to Mali, will the farmers handpick the grains to remove them from so much husk? She wonders how much time will the farmers take to separate these. वो एकदम से हैरान हो जाता है कि कितना टाइम लेते होंगे फार्मर्स इसको सेपरेशन के लिए। हैंड पिक तो बहुत ही टफ टास्क है। After this, which of these components remove peanut skins or peanuts are blown away? You observe that blowing here separates the heavier and the lighter components. How do you think farmers separate so many grains from husk? वो सोचते क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कि कैसे फार्मर सेपरेट करते होंगे ग्रेन्स में से हस्क में से ग्रेन को। और ट्रेडिशनली बैम्बू ट्रे इज यूज फॉर सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मतलब एक बैम्बू का वो होता है, ट्रे होती है, उसमें से भी मिक्सचर को सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देयर नाना टेक्स दैम टू इन द फील्ड्स टू शो द प्रोसेस एट वर्क। अब नाना जी उनको लेके जाते हैं अब फील्ड में, वो एक्चुअली वर्क वहाँ पे होता है, वो अब शो बता रहे होते हैं। माली एंड वाली ऑब्जर्व अ फार्मर स्टैंडिंग ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। द फार्मर इज मूविंग द बैम्बू ट्रे which contains thrashed wheat grains in the direction of air or wind. What do you infer from figure 9.1? Do both the components, wheat grains and husk, fall at the same place? Which of the two components get blown away? Can the wind separate the two components? मतलब जो भी हम सेपरेट कर रहे हैं और ग्रेन्स को क्या वो एक सेम प्लेस में ही सेपरेट हो रही है? अब क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, देखते हैं आगे पढ़ के क्या बता। ये देखो फिगर 9.4 शो कर रही है कैसे फार्मर, देखो उसने बैम्बू ट्रे यूज़ कर रखा है और ग्रेन नीचे आ रहे हैं और हस्क देखो दूर दूर सेपरेट हो रही है विद एयर के साथ। दिस मैथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। जैसे मिक्सचर ऑफ विंड से और ब्लोइंग एयर से सेपरेशन हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। Technological developments have resulted in developing of threshing machines called threshers. जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है इन चीज़ को सेपरेशन के लिए थ्रेशर्स यूज़ करते हैं। दीज मशीन्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स एंड हस्क। मतलब ये जो मशीन्स होती हैं स्टॉक्स में से हस्क मतलब डिफरेंट सेपरेट कर देते हैं। दे परफॉर्म बोथ द टास्क ऑफ थ्रेशिंग एंड विनोइंग साइमल्टेनियसली। ये थ्रेशिंग का काम भी कर देते हैं और विनोइंग का काम भी साइमल्टेनियसली यूज़ कर देते हैं। मीन्स ग्रेन का जो ग्रेन को प्रॉपर तरह से सेपरेट करते हैं, उसका डस्ट पार्टिकल्स जो भी होता है उसको अलग सेपरेट करते हैं और ग्रेन्स अलग सेपरेट करते हैं। Next day, Mali and Wali board a train to Ahmedabad to visit their father's friend Ghanshyam Bhai. Before leaving, Bali requests her mami to prepare मिठी पूरी फॉर देयर जर्नी। उनके मामी ने उन्हें मिठी पूरी पैक कर दी। स्वीट इंडियन ब्रेड होता है ये एक व्हीट फ्लोर का। वाली, shall I help you knead the wheat flour? Mommy, to prepare a dish with flour, first we need to remove bran, then maybe present in the flour. वाली, how do we do it? वो पूछ रहे मामी ये सब कैसे काम करेंगे? मामी, we use a sieve for this purpose. फिर वो मामी को बोल रहे हैं कि हम इसके लिए, मामी बता रही है कि सीव यूज़ करते हैं इस पर्पस के लिए, फ्लोर को भी क्लीन करने के लिए। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव एज शोन इन फिगर। ये देखो 9.5 जो हर एक घर में होता है, ये हर एक घर में फ्लोर जो भी होता है आटा यूज होता है ना, जिससे हम खाना खाते हैं, चपातीस खाते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। द बिगर पार्टिकल्स सच एज ब्रैन एंड स्मॉल स्टोन्स रिमेन ऑन द सीव। वो जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो उस पे रहते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व a sieve or all the holes of the sieve the same size. Will sieving work if the holes of the sieve are larger than the substances?
क्या कहते हैं इसके, जो ये लार्जर होते हैं सब्सटेंसेस, इफ देयर आर एनी डिफरेंसेस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल दैट पास थ्रू द सीव एंड द पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द सीव। वो पूछ रहा है कि पार्टिकल्स का डिफरेंस क्या होता है, जो उसमें से पास होते हैं और जो उसमें से रहते हैं, लेफ्ट होते हैं। Sieving is used when components of a solid mixture have different sizes। कहते हैं सीविंग तो यूज करते हैं जब सॉलिड मिक्सचर के डिफरेंट साइजेस होते हैं। अपॉन रीचिंग अहमदाबाद दे विजिट साबरमती आश्रम along with घनश्याम भाई where they learn about a नमक सत्याग्रह। जैसे ही वो अहमदाबाद पहुंचे अपने रिलेटिव्स के घर, तो वहाँ पे उन्हें पता चला कि यहाँ पे नमक सत्याग्रह डैंडी मार्च हुआ था। दैट इज़ द व्हाट इज़ द साबरमती आश्रम फेमस फॉर। इससे हमें पता चल लग गया है कि जो साबरमती आश्रम है वो डांडी मार्च के लिए फेमस है। माली आस्क वेयर इज नमक ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि कॉमन सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। फ्रॉम सी वाटर, रिप्लाइज घनश्याम, सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। कहते सी वाटर एक मिक्सचर ऑफ सॉल्ट है और इसमें सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं। टू obtain salt, the sea water is kept in shallow pits and exposed to sunlight and air. In a few days, the water, जो वाटर होता है, evaporates completely, leaving behind the solid mixture। और थोड़े दिनों के बाद जैसे ही वाटर उसमें से evaporate हो जाता है और उसमें क्या होता है, ओनली सॉलिड मिक्सचर लेफ्ट रहता है। और कॉमन सॉल्ट इज देन obtained फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन करके उसमें से कॉमन सॉल्ट की सेपरेशन हो जाती है। अब ये देखो, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि जो सांबर लेक है राजस्थान की, वहाँ से भी हमें कॉमन सॉल्ट की वाटर बॉडीज फाइंड आउट होती है। अब ये देखो कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रखा है। हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर होलिस्टिक हेल्थ और मेडिसिन, आयुर्वेदा के अंदर द हर्ब्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज द रेमेडीज। मतलब जो आयुर्वेदा के अंदर ना बहुत ज़्यादा ऐसे प्लांट्स और मतलब एक हेल्थ बेनिफिट्स बता रखे हैं उसमें। इंग्रेडिएंट्स लाइक रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और सीड्स ऑफ वेरियस उनके जिनके मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनको हम ड्राई कर सकते हैं, ड्राई करके शेड में। और वो फैसिलिटेट करते हैं वेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर, लीविंग बिहाइंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिसिन। और क्या फैसिलिटेट करता है वो, वेपोरेशन करता है एक्सेस वाटर की, और बहुत ही इम्पॉर्टेंस पार्ट होता है वो मेडिसिन का। अब ये देखो, इसमें एक एक्टिविटी बता रखी है, ये हीटिंग ऑफ चाइना डिश कंटेनिंग सॉल्ट सॉल्यूशन। Take some salt solution in a china dish. If a china dish is not available, another suitable vessel may be used। ये हमारी लैब्स में, लेबॉर्ट्रीज में ये एक कटोरी होती है, कटोरी का नाम बता रखा है इन्होंने। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कुछ और चीज़ भी, जो चीज़ अवेलेबल होती है उसके इसमें डाल के हम इसको हीट करते हैं। हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे एज शोन इन, अलाउ द चाइना डिश टू कूल डाउन। उसके बाद उसको जैसे कूल करते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट इज लेफ्ट इन द चाइना डिश, डिड यू गेट द सॉल्ट बैक। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश बाय टचिंग द सॉल्ट विद योर फिंगर्स। हम क्या प्रेजेंट करते हैं, उसमें जितना भी वाटर वेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट उसमें लेफ्ट रहता है। अब उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं, कहते इट्स नाउ टाइम फॉर माली एंड वॉली टू विजिट दादा एंड दादी residing in Puducherry, located in southern India. They are excited to meet their old neighborhood friend. After reaching Puducherry, they start talking about the old times and do not realize that it is already evening. दादी स्ट्रीट आई, वो अब अपने किसी और रिलेटिव्स के जहाँ विजिट कर रहे होते हैं। वो अपने दादू दादी के पास जाते हैं। दादा, आई शेल प्रिपेयर टी फॉर यू चिल्ड्रन, वी विल ऑल्सो हेल्प यू। वो बोलते हैं कि हम भी आपकी हेल्प करते हैं। एज दादा मेक्स द टी, ही शेयर टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। टिप्स भी देते हैं साथ में कि कैसे टी बनानी है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स। Dada, obviously with the strainer, you know, if we do not have a strainer, we can still remove most of the tea leaves. And Wali बोलती, how
Dada leaves the saucepan containing tea undisturbed for some time and gently pour the tea in a cup. Wali, oh yes, and then the tea leaves will be settled at the bottom. जैसे ही उन्होंने ये वेसल यूज करके जो भी प्रोसेस हुई इसके सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर insoluble कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन. व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. उस प्रोसेस को डिकेंटेशन और दूसरी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन. ये चाय बनाने की प्रोसेस में दो प्रोसेसेस यूज होती है हमारी. अब दादा, what I can still get a few tea leaves in my mouth because decantation does not completely separate all the tea leaves from the tea. But Balan, oh, I means it is not proper method of separation. Dada, yes, you are right. The tea is ready now. Mali picks up the tea strainer from the shelf and gives it to his Dada. Dada, let me pour the tea through his strainer. You can see all the tea leaves collected in the strainer. This process of separating tea leaves from the tea is called filtration. लीव्स को सेपरेशन करने को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन. अब ये देखो इन्होंने पिक में बता रखा है फोल्डिंग ए फिल्टर पेपर इनटू फॉर्म अ कोन. कैसे उसको फ्लास्क में फिट कर रखा है और कैसे उनको फोल्ड करके कोन की शेप में लेके आ रहे हैं. फिल्टर पेपर एक थे सिंपल, उसका 1 फोल्ड 2 फोल्ड्स कोन, ऐसे उसकी कोन की शेप बना दी और फिल्टर पेपर को फनल में लगा दिया और फनल में लगा के मडी वाटर उसको सेपरेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं कॉनिकल फ्लास्क में. ट्राईपोड स्टैंड में लगा के उसको कॉनिकल फ्लास्क में यूज़ करके मडी वाटर सेपरेशन के लिए ऐसे यूज़ करते हैं फिल्टर. अब नेक्स्ट देखो, Wally goes for a nature walk with her दादी and collects some water from a pond in a container. अब वो नेचर वॉक के लिए गए, वहाँ पोंड से वाटर लेके आए. शी ऑब्जर्व सम अनवांटेड सब्सटेंसेस इन इट. डिजाइन एंड क्रिएट ए वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर फिल्टर यूजिंग लो कॉस्ट मटेरियल्स. उन्होंने क्रिएट किया वर्किंग मॉडल. टी बैग्स वर इनिशियली मेड ऑफ सॉफ्ट क्लोथ्स. जो टी बैग्स थे, ये देखो एक इम्पॉर्टेंट नोट भी बता रखा है, लाइक सिल्क के ये टी बैग्स थे बिकॉज इट कुड होल्ड द टी लीव्स एंड लेट वाटर पास थ्रू. सिल्क वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डिड नॉट फॉल अपार्ट व्हेन इट टच्ड हॉट वाटर. बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. लेटर पीपल स्टार्टेड यूजिंग गोज फॉर मुस्लिन. इवेंचुअली दे बिगेन यूजिंग फिल्टर पेपर विच इज़ वट मोस्ट टी बैग्स आर made of today. Mali and Wali go on a boat ride in nearby river with their dada and his friend Ottukam. Ottukam is a fisherman. Ottukam क्या है? एक fisherman है. As they cast the fishing net, water drains out through the mesh. Wally recalls the filtration method she had learned and realizes that the method of catching the fish is somewhat similar. उन्होंने फिल्ट्रेशन यहाँ पे मेथड का यूज़ सोचा है. माली इज टेकन अ बैग व्हेन ही सीज प्लास्टिक बैग्स ब्रोकन. A large fish with a straw stuck in its mouth and food wrappers, along with the other fish trapped in the net. फिशिंग भी कर ली उन्होंने फिर इधर. अब देखो, माली एंड वाली टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर दादा एंड दादी एंड बिड गुड बाय टू बालान एंड ट्रेवल टू मध्य प्रदेश. अब वो मध्य प्रदेश की ओर विजिट कर रहे हैं. द ट्रेन रीच भोपाल इन मध्य प्रदेश. द सन इज राइजिंग एंड इज गेटिंग हॉट. यहाँ पे सन बहुत ही हॉट था. ऑन देयर वेज टू मासीज मेटरनल आंट्स होम दे ड्रिंक छाछ इन द ढाबा. माली आस्क द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग. पहले तो वो पेंटिंग के रिगार्डिंग पूछने लगा. हैंगिंग ऑन द बाल्स ऑफ ढाबा, जो ढाबा पे हैंग कर रखी थी. द शॉपकीपर एक्सप्लेन्स दैट द पिक्चर शोज अ लेडी परफॉर्मिंग चर्निंग. द प्रोसेस क्या कर रही है वो पिक्चर में, प्रोसेस का नाम पूछ. चर्निंग कर्ड यूजिंग अ बिग मठनी. इसको जैसे वो कर्ड यूज़ करने के लिए, जैसे कर्ड से लस्सी बनाने के काम आती हैं, बटर सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस होती है. इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स एट द टॉप. इस प्रोसेस से क्या होता है, बटर फ्लोट करता है और बटर मिल्क इज लेफ्ट बिहाइंड. जो बटर मिल्क होता है वो अ, जो बटर मिल्क लोग पीते हैं इस प्रोसेस से होता है, चर्निंग प्रोसेस से होता है.
They stay at Masi's place has become enjoyable. बहुत ही enjoyable था, and they are looking forward to share all their memories with their friends upon returning home. Now it's time for them to reach their final destination of the trip. अब उसका टाइम है to reach final destination of the trip. शिलोंग द कैपिटल ऑफ मेघालय. शिलोंग क्या है? एक मेघालय की कैपिटल है. On the arrival at their bua's house in Shillong, they notice a carpenter making a wooden door. अब वो कारपेंटर के पास पहुंच के while working he accidentally drops a few iron nails in the sawdust. The carpenter starts hand picking the iron nails. The children tell the carpenter to wait. They get a magnet from their bua. They ask the carpenter to move the magnet through the sawdust. All the nails get attracted to it. जितने भी nails थे वहाँ पे attract हो रहे थे. Which method of separation did the carpenter use? कौन सा method use कर रहा था? The substances which are attracted towards a magnet is or called magnetic substances. हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो भी मैग्नेट की तरफ सब्सटेंसेस अट्रैक्ट होते हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. आयरन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस. सेपरेशन ऑफ ए मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन. इसको बोलते हैं magnetic separation. Mali and Wally had delightful holidays, and the Bharat ki yatra, filled with fun, will be an everlasting memory for them. They not only enjoyed exploring different regions of India but also gained a lot of knowledge about various methods of separation of substances. उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन प्रोसेस वगैरह. अब ये देखते हैं, एक नोट भी बता रखा है इधर. Nowadays, recyclers use magnets to separate iron articles from a heap of waste. In many industries, the waste materials often contain scrap iron. This is separated from the heap of waste materials using magnets fitted to a crane. The scrap iron can be recycled and reused. अब ये देखो, समरीज में कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं इन्होंने जो हम पढ़ के आए हैं. हैंड पिकिंग इज यूज फॉर सेपरेटिंग सॉलिड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, कलर एंड शेप फ्रॉम ए मिक्सचर. हैंड पिकिंग हम किसी मिक्सचर में से सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. थ्रेशिंग, इसमें स्टॉक्स आर बिटन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम देम इज कॉल्ड थ्रेशिंग. ओ, एंड नेक्स्ट इज विनोइंग. इसमें लाइटर हस्क सेपरेट होती है फ्रॉम द हैवियर ग्रेन्स. किसके थ्रू होती है? विंड के थ्रू, और या ब्लोइंग एयर के थ्रू या बाय विंड के थ्रू. नेक्स्ट इज सीविंग. ये होती है सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम ए मिक्सचर बेस्ड ऑन वेरिएशन इन पार्टिकल साइज. जो पार्टिकल साइज में वेरिएशन होती है उनमें से मिक्सचर में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स को डिफरेंट करने के लिए सीव यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. ये प्रोसेस है लिक्विड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. इट कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड. अब नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर insoluble components at the bottom of a liquid is called sedimentation. जो प्रोसेस होती है सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स और द बॉटम ऑफ लिक्विड, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन. व्हेन द लिक्विड इज रिमूव्ड बाय tilting the vessel, the process is called decantation. Filtration can be used to separate insoluble solid components from a liquid. Filtration भी हम use कर सकते हैं. Churning is used to extract butter from curd. Churning is also used to extract butter from curd. Separation of magnetic and non-magnetic substances by using a magnet is called magnetic separation. Magnetic separation. अब देखो कितनी ज़्यादा सेपरेशन हमने इस चैप्टर में स्टडी की है. हैंड पिकिंग मेथड, चर्निंग, देयर आर डिफरेंट मेथड. थैंक यू, दैट्स ऑल.